Welcome everyone. This is Vishal Kumar Sharma. Welcome to Manu Law Classes. Today again we are here with fortnight current affairs and static GK. Okay, we'll be dealing with current affairs for the last 15 days, most important events of last 15 days, important news whichever are there important for you. So we'll be finishing all of those. So the first one is Russia pulls out of Open Skies Treaty. Here is the passage given. Okay, as per the clad pattern, this is a passage given. Okay, based on this passage, the questions which can be asked to you are, for example, the first question is, consider the following statements. Open Skies Treaty was first proposed by USA in 1955. The second statement says the purpose of OST, that is Open Skies Treaty, was to de-escalate tensions during the Cold War. First statement, do you have any idea? Do you have any idea? The answer is yes, it is correct. Second one, this is also correct, because whatever tension which was going on during the Cold War, this Open Skies Treaty was to de-escalate those tensions so that both the countries, for example, let's say Russia and America, both will have the knowledge of whatever army or navy or whatever defense setups the country is doing, both can have a check on it, and so that the tensions would be de-escalated. So the second statement is also correct. What is the third statement saying? It says that this treaty was eventually signed in 1992 between NATO members and former Warsaw Pact countries following the demise of Soviet Union. Correct. It finally came into effect in 2002. Absolutely correct. So the correct option is number A. Okay. Here all the details are given. You can check it out. The second statement and the second question. It says, recently one of the following countries has expressed interest to have an open sky agreement with India. Identify. Can you tell me what is the answer? Please answer in the comment box. What is the answer? The answer is United Arab Emirates. United Arab Emirates. It has expressed interest to have an open sky agreement with India. Acha, are Open Skies Treaty and Open Sky agreements different? Yes, we will see in the later questions how they are different. Let's see. There are statements given about Open Sky agreements. The answer is, first let us read all the options which are given. Open Sky agreements are bilateral agreements that the two countries negotiate to provide rights for airlines to offer international passenger and cargo services. Absolutely correct. It extends international passenger and cargo flights. Now, even if we don't have any idea, so we can see from the first statement only, it offers international passenger and cargo services. So, if services are offered, so cargo flights are also being offered. It's a simple. The next one, the National Civil Aviation Policy. It was in news because UAE proposed to have a open sky agreement. Okay, so it says ki it allows the government to enter into an open sky air agreement on a reciprocal basis with SAARC nations. Okay, SAARC nations, as well as beyond a 5,000 kilometer radius from New Delhi, that is capital. Okay, this is correct. So which is not correct now? India has open sky agreement with Greece, Jamaica, Guyana, Finland, Japan, etc. And the answer is, this is also correct. So the answer is none of the above. So all these are not the suitable answer to this question. The answer will be none of the above. Okay, all the details are given here. Please have a look. Now, the Warsaw Pact. The Warsaw Pact was signed between, please answer, is it Russia and Ukraine? Answer is no. Russia USA? No. Russia Germany? It can be an option, but let us see the other options. Russia and the satellite states. Okay, let us see what happened when Russia attacked Germany. Okay, when they killed Hitler,
So Russia had a major impact over Germany. Russia had captured East Germany. So when West Germany went into NATO, then Warsaw Pact was signed between Russia and the satellite states so that they can counter the North Atlantic Treaty Organization, that is NATO. Okay, so the answer is D. Now the next statement says question says which of the following is a factually accurate statement. So let us read the options, and by this question you will understand कि even if you don't have any idea कि what is the correct option, by elimination technique you can find the correct answer. Okay, just using the elimination technique. For example, Open Skies Treaty. Okay, let's see the first the D option, number one. Okay, we will see the first option, D. What it is saying कि India is also a signatory to this treaty. OST is between Russia and America, that is USA. India has always said कि it will never involve itself in a cold war, because when India became independent, तो उस वक्त पे नेहरू जी ने क्या किया था? What Nehru ji opted for was non-alignment movement, NAM. That means we will neither become socialist nor become capitalist. So not an ally of NATO, neither an ally of Warsaw Pact, that is Russia, USSR. So the D option is absolutely incorrect. So it cannot be correct. India is not a part. Under the Open Skies Treaty, it's saying that a member state can undertake surveillance on any part of the host nation without the latter's consent. Is it even possible? America coming, roaming whole around Russia and not even informing them, okay, not even taking their consent. Is it possible? The answer is no. So it is absolutely incorrect. It is absolutely incorrect. Officers from the host state cannot stay on board. How cannot stay on board? They all have the right. They have all the right in the world to stay on board, to keep a check ki whatever they are just taking a surveillance, or they are collecting some important data, or they are collecting some inner important data. So all these are important. So he always has the right to stay on board. Okay, so it is also wrong. The next one, C option, if you'll see, the information gathered such as troop movements, military exercises and missile deployments has to be shared with all member states. Answer is yes, it has to be shared. So you can see the answer, with the latter's consent, can stay. Both US and Russia were signatory to the treaty, not India. India was never involved in this thing. Agla, now what has happened कि Narendra Modi, हमारे PM, he will attend the 47th G7 summit. Okay, तो अब सवाल ये उठता है कि G7 summit हमारे लिए क्यों important है? Why is it important to us? तो आंसर इज कि क्या हुआ है, आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क यू कि where is the 47 G7 summit is scheduled to take place? Okay, yeah, which of the following countries is hosting? Okay, 5 options are there: UK, USA, Germany, China. We know कि India was also invited in the US 2020 G7 summit, but the summit couldn't take place because of the coronavirus pandemic. Okay, so this year it is being hosted by, the answer is the United Kingdom. Prime Minister Boris Johnson has invited India. Okay, they have invited India to attend the 47 G7 summit, which is scheduled to be held in June 2021. Some other guest countries are also called, that is Australia and South Korea. Okay, when Trump was there, he proposed G11 also. Okay, he proposed G11. So in his G11 he was involving India, Australia, South Korea and Russia. Okay, he proposed G11. He wanted this bloc to be bigger. Okay, but since Trump is no more the president of America, so whatever he used to say, that is no use for us. Okay, for now it is no use for us, because all his proposals and statements went with him. Okay,
Let's understand who all are the G7 countries. These countries are Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US. Okay, it is an intergovernmental organization formed in 1975. This can be asked, when was the G7 bloc formed? Answer is 1975. They can also ask you the members. Okay, this is the worst case scenario, that they will ask you the members or when was G7 founded. Usually they don't ask this much static portion in examination, because they actually just want to know that either you are informed or not. They don't want to check your memory status. Okay, even if your memory is full or you don't remember, don't try to remember this much detail. This is only given just for the sake of giving. Okay, next one, bloc meets annually to discuss issues of common interest. Correct. G7 does not have a formal constitution of fixed headquarters. G7 not has a formal constitution. All the decisions being taken are non-binding. Okay, non-binding. Any of the member can deny to be bound to that whatever decision is there. G7 was also known as G8 earlier when Russia was a part of it. But when Russia annexed Crimea region of Ukraine, they were thrown out. India and G7, how is it important for us? Because the participation of India at G7 at 45th summit in France, okay, it was a reflection of a deepening strategic partnership. एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छा रिश्ते का ये पर्याय था. ठीक है, जब इंडिया ने फ्रांस में पार्टिसिपेट किया. इंडिया को 2020 समिट के लिए अभी मैंने बताया कि इनवाइट किया गया था यूएसए में, मगर वो कोरोना वायरस के कारण स्थगित हो गया, मीन्स इट वाज पोस्टपोन. ठीक है, India has also attended the G8 summit, okay, 5 times between 2005 and 2009 when Dr. Manmohan Singh was our Prime Minister. Now, who are the P5 countries? Very important of the UNSC, UN Security Council. The P5 countries are China, France, Russia, UK, US. Okay, all over these countries have one power. Even 4 of these member states, let's say कि these 4 member states, इन चारों member states, they have voted, इन्होंने vote किया कि we will take India into P5 membership and we will make it P6. Let's say France, Russia, UK, US all have good relations with India, so they all supported. China didn't support and it vetoed. Okay, and when you veto, then India will not be allowed to come into this block. So this is it. Another one says, Nomura says that India saw faster than expected pace of recovery in the October-December quarter. Okay, is Nomura important for us? No. Important words I have marked it as bold. Fiscal. Important is fiscal year. Okay, fiscal year. For example, let's say budget is coming in some days. So the budget which is coming, जो भी बजट आ रहा है वो सामने एक साल के लिए, upcoming 1 year. Okay, it is proposing it, that is why it also known as budget estimates. It is estimating कि this much will be our expenses and this will be our income. So it is coming for the fiscal year 2021-22. Okay, so this is fiscal. Another thing, consumption, investment, industry, aggregate demand, supply, all I am going to give you details. Okay, कि होता क्या है, services, ठीक है, inflation, all this is important. So let's see now here. GDP in India is calculated by expenditure method. Okay, net exports. C comes for consumption, कि whatever is the consumption expenditure. Another one, G, government expenditure, whatever is the expenditure of the government. Another one is investment expenditure. Another one is net exports, that is total export minus total import. Okay, this is it. So consumption, government expenditure, investment, all we have seen here. Okay, so and net exports is total export minus total import. GDP is the total production in a country, Okay, nothing else. Yeah, India's trade deficit
with China at 5-year low in 2020. A very good news. Now what is important for us is trade deficit. क्या होता है trade deficit? क्या होता है trade deficit? Can anyone tell? Please answer in the comment box. Trade deficit क्या होता है कि whatever this concept only try to understand कि whatever export we are doing it to China, let's say 100 rupees we are exporting to goods worth rupees 100 rupees we are exporting it to China. Okay, we are importing goods worth rupees 250 from China, so we will be in a trade deficit of minus 150. Our trade deficit will be of minus 150. Sir, when we are in a deficit, then the opposite side, China, is in a trade surplus. Okay, so they are in a trade surplus of 150. This is it, trade deficit and trade surplus. Whatever trade is being taken place, okay, total export minus total import, you will easily get whatever is your trade surplus or deficit. If your exports is more, remember, if exports is more, if exports is greater than import, you will be in a trade surplus. If import is greater than export, you will be in a trade deficit. Okay, my handwriting has never been good, so I hope you all will just forgive me for that, but I'll try to explain all that possible which I have written. Okay, I will try to explain all of you. Now another one, the very important news, 5G technology. 5G technology. The Department of Telecommunication has sought input from telecom companies and other industry experts for the sale and use of radio frequency spectrum over the next 10 years, including the 5G bands. Now, why is 5G in news? Because, listen, what should you know about 5G? 5G comes in 3 bands. Okay, 5G comes in 3 bands, low, high, and 5G comes in 3 bands. Okay, low, mid, high. Okay, so the low band, mid band, and high band, how are they different with each other? The lower the band, okay, the lower the band, the lower the speed. Okay, lower the band, low band, low speed. Okay, speed is low, but coverage is big. Coverage is big. In the mid band, mid band is faster in terms of speed. In terms of speed, it is faster than the lower band, but in terms of coverage area, it has less coverage area than lower band. Okay, when we come to high band, so what happens in the high band is the speed is super high. The speed is super high, but the coverage area becomes very low. Just try to remember only these details for 5G technology as of now. Okay, in future we will see when any major development comes. Okay, now another thing, the news is that IRFC IPOs oversubscribed 3.49 times on final day. It was oversubscribed, means so what is important word for us here? The important word for us is IPO. IPO means, sir, initial public offer. IPO means initial public offer. So what is initial public offer? Whenever a share is issued for the first time it is issued first of all, remember, it is issued in the primary market. Okay, since it is issued for the first time, it is known as initial public offer, means it is being offered to the public for the first time. Whenever such issues are made, okay, whenever such issue of shares are made, these are done in the primary market, where fresh issues of shares and debentures take place. Shares and debentures take place. Okay, in the secondary market, resale of shares and debentures take place. So
important thing to learn is initial public offer. Where it is done, just remember that only. Now some details about IRFC. If static portion is asked in examination, although the chances is less, but we have to prepare for the worst. So मैं क्या कहता हूं कि आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है, क्योंकि एग्जाम का पेपर हम सेट नहीं करते, हाँ, मगर ये हम लोग जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं. मैं अपने अनुभव से आपको ये बता सकता हूं. विथ माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू that yes, these can be the probable questions which can be asked in your examination. So IRFC, it's a dedicated market borrowing arm of Indian Railways, okay, incorporated in 1986. Now another news is shadow entrepreneurs. Shadow entrepreneurs, it says कि क्या होते हैं shadow entrepreneurs? तो ये वो लोग हैं, these are those people who in the times of COVID pandemic, what they were doing ki in whenever COVID pandemic was going on, since all the markets were closed, people were not, the formal markets were closed at that time. So what these people were doing at that time, they were running a parallel economy. Not correct word is not a parallel economy, but what they were doing, क्या कर रहे थे एक्चुअल में ये लोग उस समय पे हाउस होल्ड्स को वो सुविधा पहुंचा रहे थे. These people were providing those facilities to the households which were not available in the market at that time. These people were earning money, ठीक है, because of that. और क्या हो रहा था कि these people were also able to employ others, यानी jobs भी दे पा रहे थे. तो these entrepreneurs were there, but इनका जो इनकम आता है, whatever income they are getting, they don't pay tax on that. So that is harmful. But the good part is कि they are also giving employment to some people. But the only thing that they should be paying their money, they should be paying taxes. Okay, आपको अपने मनी को आपको हमेशा टैक्स देना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स देंगे तब आपका कंट्री का भला होता है, क्योंकि लार्जर द पीपल इन्वॉल्व इन डायरेक्ट टैक्सेस, लार्जर विल बी द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. Because I always say कि indirect tax is regressive, not it's the basic saying, okay, indirect tax is regressive, it is being charged to all in equal amount, okay. अगर वो रतन टाटा हैं, अगर 1 किलो टाटा नमक लेने जाते हैं वो खुद से, तो उनको 20 रुपए में ही मिलेगा, और मैं लेने जाता हूं मुझे भी 20 रुपए में मिलेगा. दोनों ने जो टैक्स दिया उस नमक पे, दोनों ने सेम टैक्स दिया. ऑल्दो नमक टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन पैकेजिंग करेक्टिंग सब करके हम लोगों ने मान लो 1-1 रुपए टैक्स दिया. क्या रतन टाटा और मेरी वेल्थ एक जैसी है? चलिए रतन टाटा को छोड़ दीजिए, बहुत लोगों की सेंटिमेंट हर्ट हो सकती है. लेट्स से अंबानी जी, क्या अंबानी जी और मेरी वेल्थ एक जैसी है? नहीं. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव, हायर यू अर्न हायर यू पे, सिंपल. नाउ अनदर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, because in this environmental topic nowadays we are seeing that every day there are some forest fires, people are cutting trees, many deforestation events are happening, people are in Brazil only, they are clearing rainforests. So what is the correct saying behind this? These trees and these forests, these are our lifelines, they provide us oxygen to live, okay. So what is happening कि they are natural sequestrators, okay. What they do कि they suck up the carbon dioxide from the environment, they give us back the oxygen to live, okay. So they provide us with oxygen and they suck up the carbon dioxide. But what is happening, these trees are dying, okay, or are being burnt, or are being sold and cut off for people's own benefit. But these people are not trying to understand कि if these trees will not be there, the life on earth will be impossible. The temperature will be too high in summers, too low in winters, and the oxygen will not be there, okay. So what we are in the carbon sequestration, what I am trying to tell you that key scientists have come out with a method. They are artificially sucking up the carbon dioxide and will dump that into seas, okay. In seas it will help in growth of planktons, fishes. So life in sea will be, and when planktons increase they also give oxygen, so life in sea is will come back. Another one,
it can be dumped underground, which will also help in agricultural activities. So it is also a good thing, but the only problem is that it is too costly. It is too costly a process, okay, not easy to do. Another one, very important, Bandipur Tiger Reserve. It was in news recently. Why it was in news? Because according to Tiger Census 2018, Karnataka has the second highest number of tigers in the country after Madhya Pradesh. So the question can be कि Bandipur Tiger Reserve is located in 4 options are given. Let's say Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Karnataka, and let's say Gujarat. Okay, answer will be Karnataka. Okay. Another important, X Desert Night 21 bilateral air exercise किसके किसके बीच में हो रहा है बच्चों? ये इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज में है? क्योंकि इसमें हाल फिलहाल जो हमने रफाइल खरीदा था फ्रांस से, वो भी पार्ट लेगा. रफाइल भी पार्ट लेगा, ठीक है, इसलिए काफी चर्चे में है, इंपॉर्टेंट है. अब कुछ जान लेते हैं कि डिफेंस एक्सरसाइजेस क्या क्या हैं फ्रांस में और इंडिया के बीच में. पहला है वरुणा, ठीक है, ये नेवल एक्सरसाइज है. दूसरा गरुड़ा, ओके, गरुड़ा इज एयर एक्सरसाइज. तीसरा इज शक्ति, दैट इज आर्मी एक्सरसाइज. ओके, सो क्या हुआ हाल फिलहाल कि पीएम मोदी जी he has paid homage to Guru Gobind Singh on his birth anniversary. Let's know some details about Guru Gobind Singh. He was the last of the 10 Sikh Gurus. Okay, he was born on 22nd December 1666 in Patna, Bihar. His birth anniversary is based on नानक शाही कैलेंडर. ठीक है, नानक शाही कैलेंडर पे बेस्ड है, जिसके अनुसार इस साल वो 20 जनवरी को उनकी जन्मतिथि आती है. ठीक है, लास्ट ईयर इसको जनवरी 2 तारीख को मनाया गया था. ये सिख गुरु 9वीं, जब 9 साल के थे तब 9वीं में ही बन गए थे, 9 साल की उम्र में ही बन गए थे. 9वीं यहाँ पे 9वीं कक्षा नहीं है, 9 उनका उम्र की बात की जा रही है. उनके जब फादर की डेथ हुई थी गुरु तेग बहादुर की, तब इनको 9 सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनकी जब डेथ हुई इनको, तो गुरु गोविंद सिंह उस वक्त सिख गुरु बने. इनको 1708 में असैसिनेट किया गया. ठीक है, इनके कंट्रीब्यूशंस क्या हैं सिख धर्म में? काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर, बहुत महान थे. इन्होंने टर्बन, जो पगड़ी सिस्टम हम देखते हैं, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था. इन्होंने खालसा सिस्टम के, खालसा पंथ के 5 ये किए थे, और उन 5 केज के नाम है केश, हेयर, अनकट हेयर, कंगा, ठीक है, कोम्ब, कड़ा, ठीक है, कड़ा, ऐसे कड़ा हो गया ये. अगला किरपान, ठीक है, डैगर, और कच्छा, दैट इज शॉर्ट ब्रीचेस. ओके, ये 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, और गुरु गोविंद सिंह कहते थे कि ये खालसा को हमेशा इसको अडोर करना चाहिए. ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस स्लाइड में हैं, आप देख सकते हैं. और हाल फिलहाल नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश किया है. तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु पब्लिशेस द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट. ठीक है, आंसर है नीति आयोग. किस स्टेट में टॉप पोजीशन लिया है? आंसर है कर्नाटका. ठीक है, इंडिकेटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने दे रखा है कि किसी को अगर जानने की उत्सुकता हो तो उसकी उत्सुकता मिटाने का पूरा प्रयास किया गया है. हाल फिलहाल एक और हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि हाल फिलहाल शाहीन 3 मिसाइल का हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने क्या किया कि सक्सेसफुली इसका परीक्षण किया. इसका टारगेट 2750 किलोमीटर तक का इसका रेंज है. ठीक है, ये स्ट्राइक कर सकता है. शाहीन 9 या ईगल 9 एक्सरसाइज क्या है? ये पाकिस्तान एयरफोर्स और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, ठीक है, किसके? चाइना के, इन दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज होता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है चाइना इंडिया का एक्सरसाइज अपने लिए? क्योंकि ये हमारे इमीडिएट नेबर्स है, तो इनके यहाँ कुछ भी डिफेंस में ऐसा कुछ भी नया होता है तो हमें इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए. अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें इसके रिगार्डिंग खास करके होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि वी नो कि पाकिस्तान हैज नेवर बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया टिल नाउ. आज़ादी से इतिहास रहा है. ठीक है, उनकी एक ही पॉलिसी है, दैट इज एंटी इंडिया पॉलिसी. उनको कितना भी बता दो, कितना भी समझा दो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो भी वो छुरा ही मारेंगे, ये पक्का है. पाकिस्तान चाइना के बीच में अलग कौन कौन सी एक्सरसाइज है? और सी गार्जियंस, जो कि नेवल एक्सरसाइज है.
अब इंडिया चाइना के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज है? हमारी एक बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ, ठीक है। इंडिया के कुछ कुछ बैलिस्टिक मिसाइल के नाम जान लेते हैं, शौर्य, पृथ्वी, अग्नि, धनुष, ठीक है, अपने पास भी है, डरने की जरूरत नहीं है। अगला, ट्रंप इतिहास में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के इतिहास में या यूएसए के इतिहास में ऐसा पहला प्रेसिडेंट बन गए हैं जिनको 2 बार इंपीच कर दिया गया, ठीक है, इनको 2 बार इंपीच कर दिया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, ठीक है। क्या चार्ज लगा इन पे? इंसरेक्शन का चार्ज। इनके ने जो बाइडेन के काफिले पे उसमें हमला कर दिया था, हम इनके सपोर्टर्स ने, ठीक है, तो इन पे उसका चार्ज लगा और इनको फिर से इंपीच कर दिया गया। अब जानते हैं कि प्रेसिडेंट को यूएसए में इंपीच कैसे किया जाता है। 2 हाउसेस होते हैं, जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा, वहां भी 2 हाउसेस होते हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन के बेसिस पे लोग जाते हैं, और एक है सेनेट, ठीक है, जिसमें आपके स्टेट की पॉपुलेशन क्या ही हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन टोटल स्टेट जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट से 2 सेनेटर आते हैं, ठीक है, 2 सेनेटर आते हैं इसको, जिसको स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन कौन से ग्राउंड पर रिमूव किया जाता है यूएसए के प्रेसिडेंट को? एक है कन्विक्शन ऑफ ट्रेजन, ब्राइबरी, अदर हाई क्राइम्स या मिसडेमेनर। और कभी इससे पहले किसी यूएसए के प्रेसिडेंट को किया गया है? आंसर है हाँ, बिल क्लिंटन। ट्रंप को ही 2019 में भी किया गया था, बिल क्लिंटन 1998, 1998 एंड एंड्री जॉनसन इन 1868। ओके, नाउ another related question can be asked, because exam can ask you related questions, so they can ask you another important related term ki how is the president of India impeached, or which article of the Indian constitution provides for the impeachment of the president of India? Answer is article 61. president can be impeached by article 61, ठीक है। अच्छा, कौन से ग्राउंड्स हैं? ओनली ग्राउंड है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। और क्या क्या है प्रोसेस कि जब भी उनके खिलाफ जब भी चार्जेस बने तो कम से कम 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। उनको इम्पीच करने से पहले 14 दिन का एडवांस देना चाहिए, किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा, ठीक है। उनको अपने डिफेंस का हक है, और भी बहुत सारे डिटेल्स, ठीक है। हाल फिलहाल आरबीआई ने कहा है कि इसने अपनी कैटेगरी दी है, जैसे क्लैट में आपको स्पेस जैसे कुछ कुछ नामों को रिप्लेस किया जाता है, ये एक पैटर्न पे एक पैसेज मैंने बनाया है। तो आरबीआई ने हाल फिलहाल कहा कि एसबीआई के साथ साथ 2 और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 2 अनदर प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स which are there, that is One and HDFC. So which is the bank missing in this passage? इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि which of the following banks has been replaced with One in the passage referred to above? Answer will be, जल्दी बताइए, ICICI, ठीक है। इनमें से कौन सा कंडीशंस जो है बैंक को सिमेट्रिकली इंपॉर्टेंट, सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट नहीं बनाता है? आंसर है नन ऑफ द अबव, ये सारे कंडीशंस होने चाहिए, ठीक है, तब वो सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट होता है। साइज है, क्रॉस ज्यूरिसडिक्शनल एक्टिविटीज है, कॉम्प्लेक्सिटी है, लैक ऑफ सब्स्टिट्यूटिबिलिटी है, इंटरकनेक्टेडनेस है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनाती हैं, ठीक है। टू बिग टू फेल, टू बिग टू फेल का मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से एक भी बैंक फेल होता है तो वही हाल हो जाएगा जो अमेरिका में लीमन ब्रदर्स के फेल होने के बाद हुआ था 2008 में, दैट इट लेड टू अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सो कहना ये चाहता है कि क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी, ठीक है, उस पर बहुत सारे देशों की इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है, तो जो क्राइसिस वहां पे हुआ था वो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट एक तरह से फैल गया था, ठीक है। लेकिन इंडिया के आसपास बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनकी इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंड करती है, तो अगर इंडिया में क्राइसिस आया तो भी महंगा नुकसान हो सकता है, इकोनॉमी खतरे में पड़ सकती है, इसी कारण। अगला देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन आइडेंटिफाइड ग्लोबल, ठीक है, पहला सवाल बिल्कुल सही, ओके। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इंटरनेशनल बॉडी है, 2009 में हुआ, इंडिया इज अ मेंबर, ऑल आर करेक्ट। नाउ क्या है क्वेश्चन? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस पोर्टल लॉन्च किया है
जो सिटीजन्स, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट के बीच में बर्डन को मिनिमाइज करेगा। देखिए जो भी कुछ किया जा रहा है मैंने प्रमोशन करने के लिए, इसका मेन मकसद है कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ठीक है, इंडिया में बिजनेस करना आसान हो जाए ताकि ये एफडीआई अट्रैक्ट करे। एफडीआई के आने से फायदा क्या होता है? नई टेक्नोलॉजी, नए जॉब्स और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये एफडीआई अट्रैक्ट करने का तरीका है। कुछ इंपॉर्टेंट खबर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, किस में आता है? कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, ठीक है। It is acting at the nodal department for coordinating the exercise of minimizing regulatory compliance burden for citizens of business which has an adverse impact on time and cost of businesses. Okay, ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, दे रखा है आपने। अब अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट यानी रॉन्ग कौन सा है इसमें स्टेटमेंट। अगर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको सीधा, मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे ले जाता हूं। Industry stakeholders from trade bodies such as CII, FICCI and ASSOCHAM would not be able to submit recommendations. क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि FICCI जैसे बॉडी अपने रिकमेंडेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे? जो 1927 में बना है, जो इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा बॉडी माना जाता है इंडिया में, क्या उस FICCI का रिकमेंडेशन नहीं लिया जाए? ऐसा पॉसिबल है? तो ये ऑप्शन अपने आप में गलत है, आपको सही आंसर मिल गया। ये एलिमिनेशन टेक्निक है। मुझे बाद बाकी 3 ऑप्शन मैंने पढ़े, नहीं पता है कुछ भी मुझे, लेकिन मुझे ये बस पता है कि यार फिक्की को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। फिक्की इग्नोर करने योग्य ही नहीं है। अगला, जो भी अदर स्टेप्स लिए जा रहे हैं जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था फोर्टनाइट करंट अफेयर्स में कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स क्या हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, क्या आइए और इंडिया में बनाइए, कम मेक इन इंडिया, ओके। मैन्युफैक्चर हेयर, तो इससे क्या फायदा है? व्हाट आर द बेनिफिट्स? कैट इट लीड्स टू गिविंग जॉब्स, ठीक है, इट लीड्स टू गिविंग जॉब्स। इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है, इट इज द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया जब हम इसको कह रहे हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करने का, ठीक है, ये सिंप्लीफाई करता है इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट को। इसको हाल फिलहाल यूएन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड भी मिला है 2020 का, ठीक है, ये इतना अच्छा काम किया है। अच्छा, ये अवार्ड देता कौन है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु गिव्स द यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020? आंसर है अंकटाड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सिग्निफिकेंस देखिए क्या क्या फायदा हुआ है कि 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक 142nd थी, आज के डेट में 63rd है 2019 के डेटा के अनुसार, ठीक है। ये स्टेप्स जो भी हम ले रहे हैं ये हमें आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर, इट विल लीड टू मेकिंग अस आत्मनिर्भर, ठीक है, सेल्फ रिलायंट। अनदर इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा ये है डिफेंस का हमारा ये डेवलपमेंट है कि S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम में इंडिया का पहला ग्रुप, ठीक है, ये मॉस्को डिपार्ट कर रहा है ताकि इसके S-400 के ट्रेनिंग एक्सरसाइज ले पाए, ठीक है। ये मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको किसने डिजाइन किया है? रशिया ने डिजाइन किया है। सबसे पावरफुल माना जाता है इनको, ठीक है। ये सबसे डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज, ठीक है, ये है इन द वर्ल्ड। ये यूएस के थर्ड से भी ज्यादा ये है डेंजरस है, पावरफुल है, ठीक है। यूएसए ने हम पे कहा था कि हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे अगर आप रशिया से ये खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन हमने उन सैंक्शंस को ताक पे रखा। हमने कहा कि लगाना है लगा दो, फिर भी हमने रशिया से जाके ये चीज खरीदी है, ठीक है। सिस्टम कैन एंगेज ऑल टाइप ऑफ एरियल टारगेट्स, ठीक है, विद इन द रेंज ऑफ 400 किलोमीटर, ऑल्टीट्यूड ऑफ अप टू 30 किलोमीटर। सिस्टम ट्रैक कर सकता है 100 एयरबोर्न टारगेट्स और उसको 6 को एक साथ साइमल्टेनियसली मार सकता है। तो देख सकते हैं कि कितना है। अब जानते हैं इंडिया रशिया के डिफेंस कॉपरेशन के बारे में कि कैसा है। MiG-29, Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। एक पेपर पब्लिश हुआ था स्टिम्सन सेंटर का, उसमें कहा गया कि इंडिया का 86% ऑफ द इक्विपमेंट जो है ना, वेपन्स है, वो सारा का सारा रशियन ओरिजिन का है। पहले हम लोग बस इंपोर्ट करते थे, नाउ वी आर एक्चुअली को डेवलपिंग, ठीक है, को प्रोड्यूसिंग।
ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस का नाम काफी इंपॉर्टेंट, इंडिया के ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया के मॉस्कवा रिवर्स के नाम पे इस मिसाइल का नाम रखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। इंडिया और रशिया में डिफेंस एक्सरसाइज क्या है? इंदिरा, एक ज्वाइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों रहेंगे, ठीक है। मिलिट्री इक्विपमेंट क्या क्या इंडिया ने कर रखा है? INS विक्रमादित्य जो इंडिया का ओनली एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये हमने रशिया से ही मंगवाया। चक्रा 2 जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, ये भी रशिया से ही मंगवाया गया है। आर्मी के बैटल टैंक्स, IF का Su-30 फाइटर, इंडिया रशिया का डिफेंस कॉपरेशन का इतिहास काफी पुराना रहा है, ठीक है। अगला अगला देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया सिंगापुर का डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग, ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया सिंगापुर के रिलेशन में क्या क्या है? डिफेंस एक्सरसाइज कौन सी है? सिम्बेक्स, ठीक है। एक और है सिटमेक्स, ये बायलैटरल है यानी दो कंट्री के बीच में है। ये ट्राइलैटरल है, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, ठीक है। ये मेरीटाइम एक्सरसाइज है, ये भी मेरीटाइम एक्सरसाइज है यानी नेवल एक तरह से आप कह सकते हैं। सिंगापुर के पासपोर्ट को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया का सेकंड सबसे पावरफुल पासपोर्ट बताया गया है। और क्या देखिए, सिंगापुर क्यों न्यूज में रहा, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके नाम पे पहला UN ट्रीटी कोई किसी देश के नाम पे रखा गया और वो सिंगापुर के नाम से रखा गया। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, ठीक है, जिसको सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन भी कहा गया। यह हाल फिलहाल फोर्स में आया। सिंगापुर का जो हॉकर का कल्चर है, ठीक है, हॉकर का जो कल्चर है उसको यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का अवार्ड मिला है, ठीक है। समझिए कितना काम, कितना अच्छा हो रहा है। ये छोटा सा एक देश है और ये क्या क्या अवार्ड लेके जा रहा है। ये बहुत सीखने की योग्य चीजें हैं, ठीक है। सीखने के योग्य चीजों से आया कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया। इंडिया का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक खुला है, ठीक है, जो भी हाउस होल्ड और कमर्शियल यूनिट से ये सेटअप होगा, जो डिस्पोजल जो भी है वेस्ट का उसको कलेक्ट करेगा। ये कहाँ खोला गया है? आंसर है मध्य प्रदेश, भोपाल, ठीक है। वैक्सीन डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्या है? ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी, ठीक है। शिपमेंट आने शुरू हो गए हैं, इंडिया ने वैक्सीन भेजनी शुरू कर दी है, ठीक है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज वैक्सीन आपकी श्रीलंका भी पहुंच चुकी है और श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने ये इंडिया को तारीफ की है, इंडिया को थैंक यू कहा है, ठीक है। मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह शिपमेंट जा चुका है। म्यांमार और सेचल्स को मिलने वाला मिल गया, ठीक है। श्रीलंका को जाने वाला है जो आज पहुंच गया, ठीक है। देखिए अब जानते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्ग टर्म गुडविल, ठीक है। ना केवल ये वैक्सीन से ही ये बीमारी को काउंटर कर पाएंगे बल्कि इंडिया का स्टैचर काफी बढ़ेगा। इंडिया का स्टैचर काफी बढ़ेगा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत अच्छा, इसको अच्छी नीति, अच्छी सोच का हम पर्याय कह सकते हैं कि जब बाद बाकी देश ये आपस में अपने अपना सोचकर बिजी थे, उस वक्त पे इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री को लीड कर रहा है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो भी हैं सब पुअर कंट्रीज हैं, सबको सस्ते में वैक्सीन, बहुत सस्ते में इंडिया बेच रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म गुडविल, चाइना से पहले अगर हम इन कंट्रीज को दे रहे हैं तो हमें एडवांटेज ओवर चाइना है, ठीक है। चाइना के वैक्सीन और मास्क से पहले हम अपना वैक्सीन बेच पा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज पे लेवरेज मिल गया हमें। कैसे मिला लेवरेज? क्योंकि WHO ने हाल फिलहाल ओपनली इन लोगों को कहा था कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये जानबूझ के वैक्सीन बनाने में लेट इसलिए कर रहे हैं ताकि पुअर कंट्रीज को सस्ते में ना बेचना पड़े, ठीक है। ये पैसा कमाने का टेक्निक सोच रहे हैं। वहीं पे इंडिया पैसे की जगह छोड़ के गरीबों को, छोटे छोटे जो देश हैं इन सबको दे रही हैं और बाकायदा सस्ते में दे रही हैं, ठीक है। तो इंडिया एक इंटरनेशनली बहुत अच्छा अपना स्टेक बना रहा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। फार्मा सेक्टर में बूस्ट आने वाला है, ठीक है, आएगा ही क्योंकि जब इतना बिकेगा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। सिंपल कंसेप्ट है सप्लाई का, तो कंसेप्ट लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है, इकोनॉमी रिवाइव होगा, ठीक है। हाल फिलहाल IMF ने प्रोजेक्ट भी किया है कि इंडिया डबल डिजिट में बढ़ेगा, 11 पॉइंट समथिंग, ओनली कंट्री इन द होल वर्ल्ड आफ्टर कोविड, पॉसिबल ही नहीं था और किसी के लिए। एक और इंपॉर्टेंट, इस ये पावर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये बताइए कौन से रिवर पे है? आंसर है शेनाब, ठीक है।
जनाब ये इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आ रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जान लेते हैं। 1960 में बना था, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान इसके सिग्नेटरीज हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वेस्टर्न साइड के रिवर्स हैं जिसमें आते हैं इंडस, चेनाब, झेलम, ठीक है, इंडस, चेनाब, झेलम, जो भी वेस्टर्न रिवर्स हैं इनका पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जिनमें आते हैं रावी, ब्यास, सतलज, इनका पानी इंडिया यूज करेगा। इंडिया को इन वेस्टर्न रिवर्स का 20% वाटर यूज करने की अलाउड है। जो डैम बन रहा है वो कहां बन रहा है, किस पे बन रहा है? चेनाब पे बन रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान ने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ है, ठीक है। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे जो और सिग्नेटरीज थी जो पाकिस्तान के खिलाफ जो भी था इसको क्लियर किया और कहा कि हम यहाँ पे डैम बनाएंगे और डैम बन रहा है, ठीक है। थोड़ा जान लेते हैं कि ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन डैम है, ठीक है। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन डैम है। रन ऑफ द रिवर में क्या होता है? इसमें अलग से रिजर्वायर बनाने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मान लीजिए रिवर है, ठीक है, हमने इसका एक कोर्स काटा और यहाँ से जो पानी फोर्स में आ रहा है ये आया डायरेक्ट टरबाइन के ऊपर गिरा और उसके अलावा उससे जो भी बिजली जो भी बनाना है आप बना सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज कि इजिप्ट ने हाल फिलहाल क्या किया? अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज से सुधार किया है या एक तरह से रिज्यूम किया है कतर के साथ। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कतर? क्योंकि फीफा 2022 का वर्ल्ड कप होस्ट है। फीफा 2022 वर्ल्ड कप का होस्ट है, ठीक है। अरब क्वार्टेट का हिस्सा है, ठीक, अरब क्वार्टेट का इजिप्ट हिस्सा है। कतर वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स है। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब जो भी है ये पोल्यूशन फैलाते हैं, ये अच्छा एनर्जी नहीं है। कोल अच्छा एनर्जी नहीं है, इससे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। वहीं पे नेचुरल गैसेस जो है, वट एवर नेचुरल गैसेस आर देयर, ठीक है, दीज आर नॉट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। सो द नेक्स्ट फ्यूचर इज नेचुरल गैसेस। कतर हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ फील्ड्स इन ईरान, ठीक है। व्हाट हैपेंड कि व्हेन कतर वाज सपोर्टिंग ईरान, इजिप्ट वाज अगेंस्ट देम। दे सेड कि नो, यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म, वी विल नॉट स्टे विथ यू। बट नाउ इजिप्ट इज सेइंग कि कतर हैज गॉन टू फार अहेड and now they have only option, that is to resume their ties with Qatar, otherwise not possible. Another one, when do we celebrate Parakram Divas? On the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. Go and read as much as you can about Netaji, ठीक है। 2-3 फिल्मों के नाम भी सजेस्ट कर रहा हूँ, बन पड़े तो देखिए, गुमनाम ही देख लीजिए, ठीक है। एक और सीरीज आई थी राजकुमार राव की, ठीक है, सुभाष करके, वो भी बन पड़े तो देखिए और जानिए नेताजी के बारे में। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़िए। ये आप जो भारत आज देख रहे हैं, अगर नेताजी नहीं होते तो आज ये भारत आपके सामने नहीं होता, ठीक है। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है। तो कोशिश करिए कि इनके बारे में ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा समझें, अपने नेता को जानें कि क्या कर सकता था हमारा नेता, क्या किया, ठीक है। एक्सरसाइज कवच काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? इसलिए कि पहला एक तरह से लार्ज स्केल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें इंडिया के एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और साथ में कोस्ट गार्ड भी रह रहे हैं, ठीक है। क्यों कोस्ट गार्ड को रखा गया है? याद रखिए 26 से 11 का हमला जो हुआ था वो समुद्र के रास्ते से ही हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने समुद्र को गार्ड करके रखें, ठीक है। पार्टिसिपेशन पूछ सकता है और आपसे एक्सरसाइज का नाम पूछ सकता है एग्जाम में। अनदर हुनर हाट, ठीक है, कहाँ हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। आपसे केवल ये पूछ सकता है। थीम वोकल फॉर लोकल, हर चीज़ का थीम है आजकल वोकल फॉर लोकल, ठीक है। कौन से मिनिस्ट्री ने कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अंडर उस्ताद, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड मार्केट एक्सपोजर। सिग्निफिकेंट क्या है? एम्पावरमेंट एक्सचेंज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अनदर ऑक्सफैम रिपोर्ट है द इनइक्वालिटी वायरस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। आपसे ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज रिलीज द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट, ओके, आंसर विल बी ऑक्सफैम। आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। इनमें बताया गया है कि किस तरह कोविड में अमीर और अमीर हुए हैं, गरीब और गरीब हुए हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर पे क्या इंपैक्ट है कि
जो भी वर्ल्ड में 122 मिलियन जॉब्स गए हैं उनमें इंडिया ने 75% उसको कंट्रीब्यूट किया है नंबर को। ऐसा नहीं है कि अच्छा कंट्रीब्यूशन है, यहां चलो जॉब्स जा गए तो हम उसमें भी कंट्रीब्यूट करके आते हैं, नहीं, इट्स नॉट अ गुड नंबर। बट द ट्रूथ इज कि इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट 75%। एजुकेशन पे ये है, सभी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इंटरनेट पे और स्मार्टफोन लैपटॉप लेके ऑनलाइन क्लासेस कर पाए। कहां किसी सरकारी स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ गया, फिर से स्कूल छोड़ने का रेशियो बढ़ गया। हेल्थ इनइक्वालिटी है, क्योंकि पुअर जो पीपल है उनके पास अच्छी सैनिटेशन की सुविधा नहीं है, जो बाथरूम फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है, एक ही चीज को 4 लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो पानी का नलका है वो एक है, हर कोई वहीं से पानी ले रहा है। कोविड आप जान रहे हैं कि छूने से फैल रहा है, तो वहां से नहीं फैलेगा, तो पुअर जो है ज्यादा वल्नरेबल है। सैनिटेशन फैसिलिटीज दीज पीपल आर नॉट हैविंग, ओके। जेंडर डिस्पैरिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई अमंग विमेन, ओके। इंक्रीज डोमेस्टिक वायलेंस, they are living with their husbands they don't have any work, so what to do? Come on, let's hit these women. Poorer women also suffered health wise because there was disruption in health services. Anganwadi centers were not open because of the lockdown, so these women were more suffered, these women suffered more. Another, now some questions are there कि which of the following ministries has launched a national migration support portal? श्रम शक्ति किसने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? आंसर जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला, गर्ल चाइल्ड कब से रिवेट करते हैं, ये सारे आप दे सकते हैं। ऑल्दो मैंने आंसर्स आपको दे रखे हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप खुद से दें, उसके बाद 2 मिनट वीडियो पॉज करके देखें, कोशिश कीजिए कि आप इसका आंसर दे पाएं। और उसके बाद ये रहा आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 24 जनवरी, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, अवार्ड दिया जाता है, याद रखिए इसके नाम में ही कैश है, ठीक है। आंसर जरूर, इसका अवार्ड का नाम प्रधानमंत्री है, लेकिन देते कौन है इसको? प्रेसिडेंट, क्योंकि 26 जनवरी को झंडा फहराने का काम प्रेसिडेंट का है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? क्योंकि इस वक्त इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे मनाता है 25 जनवरी, ठीक है। आई होप आज की क्लास सभी को अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।